Can you all hear me? Yes, please confirm me. Okay, thank you, Prabhaji, for confirmation. Uthatji, thank you. Dayananji, thank you. Suraj Kumarji, thank you. Ashwinji, thank you. So, I think all are able to hear me. Okay. So, just we'll start the webinar. Thank you for joining the session. Okay. Today, the session is on chart patterns, right? So, the chart patterns, what is chart patterns? What are the different types of chart patterns? Okay. How you can use these chart patterns for your trading. Okay. And how to set targets, how to set stop losses. Okay. And how to get the best benefit of these chart patterns, which is there in Stockage app. Okay. So before starting, I just want to know how many are you doing this session for the first time, and how many of you are doing it for repeating it for the second or third time, so that I am aware how many. First, just write first or second. First time, okay. Suresh ji first time, Prabhaji first time, Durga ji first time, Ashwin ji second time, okay. Sanjeev ji, Chandrasekhar ji second time, okay, okay. Dayanand ji for the second time, PK Jain ji for the first time, Omkar Mishra ji for the second time, okay. Uh, Awad ji for the second time, okay. So there is a mix of Nizam ji for the first time, Raghav ji for the first time. So mostly there are people from for doing it for the first time. There are some who are doing for the second time. Okay, good. So what are chart patterns? First, you have to understand what are chart patterns and how they are formed. Okay, then what are the different types and how to use it. Okay, so chart pattern is a part of technical analysis. In stock market, there are mainly three types. Two, then and combining two, we get the third type. The first is fundamental, second is technical, and third is techno funda. That is combining both technical and fundamental. We call it techno funda analysis. Okay. So if you want to combine, if you want to use the third type of category, so you have to learn fundamental as well as technical. Okay. Generally for short-term trading, you swing trading, people use, technical analysis. Okay. Long-term investing, people use technical as well as fundamental. Okay. So both are important. In the market, both are important. Okay. So today what we are going to learn is more of technical analysis. Okay. And technical analysis is based on demand and supply. Okay. And historical representation of some pictures. Okay. What historically has been done, it will be repeated again. That is the main funda of chart patterns, that what has been done, okay, then this will happen this time also. Okay. So if you are seeing anything which has every summer, if you see that in the month of April, there is going to be a rain, okay, or May, there rain from past 5 to 10 years. If you are seeing that every April there is rain, so your expectation is that this April also it will rain. Okay. So same way, so certain types of chart patterns which have been formed, okay, and from the last, 50 to 100, from like 50, say more than 100 years, it has been working. Like if it has been done last year or from last 50 years, it has been working. So this time also it will work. And these chart patterns are based on the human psychology. What are the thoughts of the people, of the traders, investors, speculators about that stock, okay, is represented, in a visual way. That is chart. Okay. So chart patterns can be reversal type of patterns, and it can be a continuation pattern, right? So what are reversal patterns? The patterns which reverses from upside or downside. Suppose if a stock is trending down, moving down, okay, and then it started reversing, okay, then we call it a bullish reversal. Call it a bullish reversal, and that's a reversal pattern. And suppose the stock was going up, okay, and then started moving down, okay, then what you'll say? It is going down. So uptrend has changed to downtrend. It is started trending down. So those are reversal patterns. Okay. Then there is next is a continuation pattern. Continuation patterns are the patterns which continue their previous trend. Suppose the previous trend is up. Okay. The stock was trending up, and then it started consolidating in a range. Started moving sideways. And again it started moving upside to its previous trend. That is called a continuation trend. And suppose the stock was trending down. If the stock was trending down, okay, then it consolidated downside near some range, okay, and then again it started moving down.
that is a downside continuation. Okay. So for upside continuation, for downside continuation, for uptrend reversal, and for downtrend reversal, for all these types, we have a different patterns and we have different names. So today we are going to learn about all these names. Okay. Yeah, I have not changed the slide. Mr. Tripathi ji, I have not changed the slide. I'll change the slide right now. Okay. So slide is not that important. The thing what is important is go with the words what I'm saying. Okay. Slide will be shared with you. Okay. No worries regarding the slide. Okay. Video is also recorded. You also get the recording. Okay. So, and if you have any doubt while understanding any topic, you can ask me on the chat. I'll try to answer that question. Okay. Okay. So now what is chart? Chart patterns, it is a cumulative movement of stock price in a way from distinctive patterns of technical charts. Okay. Knows the as chart moves, how the chart is moving. Okay. It helps us to predict the future price movement, how the price will move in future. It helps. Okay. And it is not the surety, it is always the probability. In stock market, you always know that, and I always say during all the webinars that never expect 100% surety in any strategy. Okay. It is always the probability game. That chances are higher if certain set of parameters you see, so this certain thing will happen. Okay. That chances are higher, but there is no surety in the market. Anybody who is giving you surety in the market, you have to be alert with them, right? So a chart pattern can be a continuation pattern or a reversal chart pattern. As I've told you, it can be a continuation or it can be a reversal pattern. Okay. So what chart patterns say? Chart pattern says it's a mass psychology. What is the people? It's a thought process of all the participants in the market, okay, which is being represented in a visual form as chart. What I am thinking, what you are thinking, what a person sitting in US is thinking, okay, about that stock at a particular time, okay, then you can understand that by using the chart patterns, okay. So actually, the chart patterns are reflecting the human psychology, okay, what the thought process is going, okay, for all the traders and investors in the market about that stock. It's a representation of thought process, right? Okay, as I've told you, chart patterns can be a reversal pattern and continuation pattern, which I've already explained you what are reversal pattern and what are continuation pattern, right? So now the main thing starts, that is triangles. The triangle is one type of pattern in, okay, which is a part of technical analysis and which is a part of chart patterns. And under triangles, there are three types of triangle: symmetrical triangle, ascending triangle, and descending triangle. So we'll know about all these triangles, okay, and how to set targets and stop loss of these triangles, okay. So symmetrical triangles are very important, okay, and symmetrical triangles give you, it can be, either upside breakout or it can give downside breakout. The breakout depends on the direction of its, which side it is giving the breakout. If it gives an upside breakout, okay, then it's a bullish. And if closes below this line, then it's bearish breakdown, okay. So I'll just start. So this is how symmetrical triangle looks, okay. So symmetrical triangles, you can see there are two converging lines. There are two converging lines. One is downward sloping line, okay, and one is upward sloping line. अच्छा, somebody wants me to speak in Hindi, तो मैं हिंदी भी मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है जो नीचे जा रही है. दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन कैसे बनती है? ये आपके ये जो हाई है, ठीक है, लोअर हाइज मींस this high is lower than this high and this high is lower than this high is lower than this high means lower highs. हर हाई जो है लास्ट हाई से नीचे है. तो ये हाई इस हाई से नीचे है, ये हाई इस हाई से नीचे है, ये हाई. तो इससे ये जब हाइस को कनेक्ट करेंगे हम लोग को एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलेगी, राइट. फिर यहाँ पे यू कैन सी देयर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. एक यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है. अपवर्ड स्लोपिंग लाइन कैसे बनती है? जब हायर लोज बनते हैं. मतलब हायर लोज मींस जब ये लो जो है इस लो से हायर है, ये जो लो है इस लो से हायर है, ये जो लो है इस लो से हायर है,
और ये जब अपने कनेक्ट करेंगे तो अपने को एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलेगी, और ये दोनों एक जगह पे आके कन्वर्ज हो जाती है, मीट करती है जो लाइन, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे जब रेंज करता है, एक ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है, ओके, और वॉल्यूम्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, ओके, और प्राइस यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो रहता है बैलेंस होता है, देयर इज अ बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ओके। जितनी डिमांड है उतनी मतलब प्राइस मूवमेंट जो है वो आपका एक स्टॉक में स्थिर हो जाता है, ओके, एक रेंज में चला जाता है। नाउ द थिंग व्हेन टू ट्रेड असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जब आप ये ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दे के बंद हो जाता है, इफ द प्राइस क्लोजेस अबव दिस लाइन, ठीक है, तो वी कॉल इट अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बुलिश ब्रेकआउट, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बुलिश ब्रेकआउट हो जाता है। अगर ये इस लाइन के नीचे बंद हो जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे बंद हो जाता है प्राइस, तो वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेयरिश ब्रेकडाउन हो जाता है। तो वहां पे अपने बेयरिश हो जाते हैं, और इसके ऊपर क्लोज देगा तो बुलिश हो जाएंगे। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैन आइदर बी अपसाइड ब्रेकआउट और इट कैन गिव डाउनसाइड ब्रेकआउट, बोथ साइड ब्रेकआउट दे सकता है, राइट। नाउ आपको ब्रेकआउट समझ में आ गया। यहाँ पे जनरली ब्रेकआउट क्या होता है, वॉल्यूम के साथ होता है, तो वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द ब्रेकआउट विच हैपेंस विद वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो जाता है। जब ब्रेकआउट होता है तो वहां पे डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो जाता है, और प्राइस एक ब्रेकआउट देके उसके ऊपर क्लोज कर देता है। सपोज यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड आ जाती है, ओके, एंड सप्लाई कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। और प्राइस अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा तभी ब्रेकआउट होगा, बट अगर इंट्राडे में वो जाके ऊपर गया बट नीचे में क्लोज हो गया, तो विल नॉट कंसिडर इट टू बी एज अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट विल वी कंसिडर ओनली इफ इट क्लोजेस अबव दिस लाइन, ठीक है। और सेम इज द नीचे का, अगर नीचे भी लाइन के नीचे बंद होता है तभी ये आपका बियरिश ब्रेकडाउन होगा, राइट। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, अब ब्रेकआउट तो हो गया, मैं स्टॉक मैंने बाय किया ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, अब मैं कहां पे निकलूं, व्हाट विल बी द टारगेट, तो इसका टारगेट क्या होगा, राइट। तो टारगेट अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हाईएस्ट डिस्टेंस है, हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस, तो हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस सपोज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट के बीच में जो हाईएस्ट डिस्टेंस होगा, सपोज ये आपका है 200 का प्राइस है, इफ द हाई इज 200 एंड दिस इज 150, ओके, हाई इज 200 एंड दिस इज 150, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ अपने का, 200 माइनस 150, 50 रुपीज का डिफरेंस हुआ। और सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है आपका से 180, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट क्या है, 180, राइट। सो 180 आपका ब्रेकआउट पॉइंट है, तो टारगेट क्या हो जाएगा, सो 180 में प्लस 50 करेंगे, राइट। सो 180 प्लस 50 इज 220, राइट। सो 220 विल बी माई टारगेट, क्लियर। सो we'll take the highest distance between the this point, highest vertical distance of this and this, इन डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहां पे अपने इसको ऐड करेंगे टू गेट द टारगेट, ओके। नाउ स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जनरली टारगेट्स पैटर्न्स आपको स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस बट लगाना होगा। स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं अपने, वी कैन पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ रेशियो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मीन्स अगर यहाँ पे आप 50 रुपीज पाना चाह रहे हैं, देन योर स्टॉप लॉस विल बी 25 रुपीज, ओके, ओके। तो स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको अपने से डिसाइड करना है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन वेज हाउ यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस। तो पहला मैंने जैसे कहा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लाइक अगर आप 50 रुपए पाने की कोशिश कर रहे हैं तो 25 रुपीज का नीचे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ओके। ये दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे है कि अगर ये ब्रेकआउट कैंडल जहां पे ब्रेकआउट दिया था जिस कैंडल ने, ओके, उस कैंडल के ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे बंद हो जाता है, देन ऑल्सो दैट विल बी द सेकेंड टाइप ऑफ ब्रेकआउट, यू कैन यूज दैट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, बट दैट वो आपका जो है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। एंड थर्ड, ये कैंडल के जब नीचे बंद हो जाए, ये लाइन के नीचे अगर बंद हो जाए तो आप वहां पे भी निकल सकते हैं, बिकॉज आपका ट्रेंड चेंज हो गया है, ओके। तो ये सब आपके प्राइस पॉइंट के स्टॉप लॉस हो गए। एंड द फाइनल स्टॉप लॉस, टाइम स्टॉप लॉस। अब एक टाइम के लिए भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि मान लीजिए आपका स्टॉप हो गया, स्टॉक लिए हुए 3 महीना हो गया, बट स्टॉक इज नॉट मूविंग आइदर अप और डाउन, इट इज ट्रेडिंग इन अ रेंज, देन ऑल्सो यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, तब भी आप स्टॉक से निकल सकते हैं, ठीक है।
So any question on this target and stop loss symmetrical triangle? Then I'll move to another triangles. I'm just going to a question. How to draw these pattern using trend line? ये पैटर्न्स आपके ऑटोमेटिकली बने हुए हैं अनासोया जी. ये पैटर्न, दीज पैटर्न्स आर ऑटोमेटिकली इन स्टॉकेज ऐप. आई विल शो यू कि ये पैटर्न्स आपको ऑटोमेटिकली दिखेंगे, बट आप अपने से भी बना सकते हैं. आप कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में जाके आप दे आर वेज टू मेक ट्रेंड लाइन एंड ऑल. सो आप कोई भी एक बेसिक आप ट्रेडिंग व्यू या investing.com में भी जाके आप ये अपने से बना सकते हैं. स्टॉकेज में भी है जहां आप खुद से बना सकते हैं, बट चार्ट पैटर्न जब आपका बन के आता है उसमें ऑटोमेटिक बन के आता है ये सब लाइंस. ओके, टारगेट फिर से बताए. ओके, आई जस्ट रिपीट द टारगेट. हाउ मच टाइम जनरली you can wait for the target to achieve for at maximum up to 3 months. 3 months तक आप वेट कीजिए. इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग देन एग्जिट. एंड चार्ट का जो टाइम फ्रेम है अपना डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है. ओके, तो टारगेट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सम. ठीक है, तो टारगेट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ये प्राइस जो है, ये हाईएस्ट डिस्टेंस जो आपका मैक्सिमम जो पैटर्न जहां पे बना है उसके बीच में जो हाईएस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसका हाई लेंगे और उसका लो लेंगे. सपोज ये हाई जो है 200 है, ओके, और ये जो लो है 150 है. तो इस हाई और लो के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 200 माइनस 150, 50 रुपीज. तो 50 रुपीज का ब्रेकआउट हो गया. अब मेरा टारगेट है 50 रुपीज का. ठीक है, अब ब्रेकआउट हुआ. सपोज 180 के प्राइस में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ का प्राइस 180 है. अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 180 है. तो 180 का मेरा टारगेट कितना था? 50. सो 180 प्लस 50, 230. तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा? 230 एज पर चार्ट पैटर्न. चार्ट पैटर्न के हिसाब से 230 टारगेट हो जाएगा. राइट, क्लियर है? ओके, ओके. सो नाउ आई मूव टू अनदर पैटर्न एंड देन आई मूव टू स्टॉक ए चार्ट पैटर्न में जाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अभी रिसेंटली किस पैटर्न में बने हैं, और वी ऑल्सो ट्राई टू फाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस. ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न्स पहले बने थे जो मैंने स्टॉक से ही लिए हैं. सिमेट्रिकल ट्राइंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ओके, और उसके बाद इट हैज मूव्ड अप. ठीक है, ये आपका सिमेट्रिकल ट्राइंगल का बेयरिश बेयरिश ब्रेकडाउन है. तो जब मैंने कहा था नीचे की लाइन के नीचे अगर बंद हो जाएगा तो वो डाउन साइड ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, वहां पे अपने को बुलिश नहीं होगा. जब ऊपर बंद होगा देन ओनली इट इज बुलिश, तभी अपने बाई के उसमें जाएंगे. ठीक है, नाउ असेंडिंग ट्राइंगल. असेंडिंग ट्राइंगल इट इज लाइक अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, बट ये जो है ये सिर्फ बुलिश होता है. इसमें क्या होता है, ये बुलिश पैटर्न है. जैसे कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपका बेयरिश या बुलिश बोथ बन सकता है. ये जो पैटर्न है असेंडिंग ट्राइंगल, ये सिर्फ बुलिश पैटर्न है. मतलब एक्सपेक्टेशन है कि ये अपसाइड ही ब्रेकआउट देगा. अगर अपसाइड ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे का दे दिया, तो ये पैटर्न विल बिकम इनवैलिड. ठीक है, पैटर्न विल बिकम इनवैलिड. राइट, तो द लॉजिक इज सेम यहाँ पे भी. यहाँ पे ओनली डिफरेंस इज दैट यू कैन सी देयर इज वन हॉरिजॉन्टल लाइन, फ्लैट लाइन. ठीक है, जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या थी, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी. यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन है. ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन. और यहाँ पे यू कैन सी जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में असेंडिंग ट्रायंगल असेंडिंग अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, वैसे यहाँ पे भी यू कैन सी देयर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. यहाँ पे भी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है. ठीक है, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फ्लैट लाइन है. इट मींस यहाँ पे क्या होगा, द प्राइस इज फेसिंग रेजिस्टेंस. एवरी टाइम द प्राइस इज गोइंग दिस लाइन, okay, it is facing resistance at this point and it is coming down and buyers are giving support and pushing the price back to the resistance level. तो यहाँ पे हम देख रहे कि डिमांड सप्लाई जोन जो है वो आपका बैलेंस है. डिमांड सप्लाई क्या है? बैलेंस है. ओके, नाउ वंस द डिमांड सप्लाई यहाँ पे आपका इम्बैलेंस आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट हो जाएगा. इफ देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यू विल सी द ब्रेकआउट हैपनिंग एट दिस पॉइंट. ओके, ठीक है, तो ब्रेकआउट जितने ज्यादा वॉल्यूम के साथ देता है द मोर कॉन्फिडेंस वी गेट. ठीक है, जितने ज्यादा वॉल्यूम के साथ देगा वो ज्यादा अपने को कॉन्फिडेंस देगा होल्ड करने का, बिकॉज वो पार्टिसिपेशन लोगों का ज्यादा है उस ब्रेकआउट में. ठीक है, ठीक है. सो टारगेट इसमें कैसे निकालेंगे? सेम वे है टारगेट कैलकुलेशन का. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाई है और ये लो है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. जैसे आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल निकाले थे, इट इज द सेम वे ऑफ कैलकुलेटिंग टारगेट.
इन दिस केस ऑल्सो। तो हाई एंड लो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, जैसे कि 200 का ये हाई है, ये लो है 150 का, तो डिफरेंस इज 50 रुपीज। ओके, और ये प्राइस ब्रेकआउट दिया 200 के ऊपर, राइट, यहाँ पे 200 था, तो 200 प्लस 50, तो 250 का आपका टारगेट हो जाएगा। टारगेट विल बी 250, राइट, 250 का टारगेट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द लॉसेस इन द मार्केट। लॉस होता है बट वो छोटे लॉस से आपको निकाल देता है, कोई बड़ा लॉस नहीं होने देता है। दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज यूज स्टॉप लॉसेस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस, मैंने कहा कि चार्ट पैटर्न्स आपको स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, बट स्टॉप लॉस प्योरली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। कोई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकता है, ठीक है। जनरली आपको 1:2 का ही लेना चाहिए। अगर मैं खोने को एक है तो पाने को दो, तो अगर आप मान लीजिए ऐसा कोई भी 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड्स इफ यू आर बाइंग इन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, इवन इफ यू आर राइट 50% ऑफ द टाइम्स, मैं 10 ट्रेड लेता हूँ जिसमें 1 रुपया पाने को है और 2 रुपया 2 रुपया पाने को है और 1 रुपया खोने को है, राइट, और मैं 5 टाइम्स राइट पड़ा, 5 टाइम्स रॉन्ग पड़ा, तो आउट ऑफ 10 ट्रेड्स, मैं 10 ट्रेड्स किया, तो मुझे जब मैं जीता, विन किया, तो हाउ मेनी आई हैव गेन, 2 into 5, दैट इज 10 रुपीज आई हैव गेन, and I have lost 50% of the time, and I have lose 1 rupees per trade. That is 1 into 5, 5 rupees. So 10 minus 5 is 5. तो 5 rupees still आप गेन में रहेंगे, राइट। सो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपको रखना चाहिए अपने फेवर में, दैट इज 1:2 का। आप 50% राइट होने के बाद भी यू कैन बी अ विनर इन दी मार्केट इफ यू मैनेज योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ओके। तो ये आपने देखा, दैट इज वन वन पार्ट ऑफ पुटिंग द स्टॉप लॉस। एंड सेकंड क्या मैंने कहा था आपको, ब्रेकआउट कैंडल, जो कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे आप फिल्टर देके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दैट इज द सेकंड वे। एंड थर्ड वे, अगर ये लाइन के नीचे बंद कर देता है, या अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे बंद कर सकता है, देन ऑल्सो यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस देयर ऑल्सो, उसके नीचे अगर बंद कर देता है तो वहां भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहां भी आप स्टॉप लॉस लगाए तो आपको अपना देखना होगा, अपने रिस्क कैपेसिटी के ऊपर जाके स्टॉप लॉस नहीं लगाए। आप अगर रिस्क वहां तक का ले सकते हैं, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, आपके लिविंग लिविंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको कोई ज्यादा पैनिक नहीं होता है, वो स्टॉप लॉस आप रखें। जहां पे आपको बहुत ज्यादा फियर लगे, बहुत डर लगे, आपको लग रहा है कि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो वो स्टॉप लॉस आप ना रखें, ओके। डोंट गो बियॉन्ड योर कैपेसिटी, ठीक है। अगर 1:2 के हिसाब से आप रिस्क फॉरवर्ड रखेंगे तो इट्स बेटर। आई सजेस्ट दैट यू शुड ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस 1:2, और थोड़ा पैटर्न देख लें कहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। और सपोर्ट देख रहे हैं उसके नीचे थोड़ा सा रखें, थोड़ा सा वो कर सकते हैं आगे पीछे, डिपेंड। तो आपको लेवल्स और रेशियो सब, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लस लेवल्स मिला के एक स्टॉप लॉस रखना होगा, बिकॉज दो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं, दे नो वेयर द स्टॉप लॉसेस आर बीइंग प्लेस्ड। इसीलिए कितनी बार आप देखते होंगे कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया और उसके बाद ही स्टॉक बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि सब सोचते हैं कि वो लोग आपका सौदा देख लिए, दे हैव नॉट सीन योर सौदा, बट दे नो द साइकोलॉजी, वो हमारे लोग की साइकोलॉजी जानते हैं कि हम लोग कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट। तो रिटेल ट्रेडर्स जो है, हम लोग की साइकोलॉजी जानते हैं कि वो ट्रेडर वो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो उसी बेस्ड के ऊपर वो वहां तक प्राइस को हिट करा के देन वापस वहां से बाइंग आ जाती है, बिकॉज दे नो द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन, नो। सो दैट्स वाई आप कितनी बार देखते होंगे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ एंड देन वापस वहीं पे उसके ऊपर चला गया, राइट। तो वो होता है कि अपने गलत स्टॉप लॉस कभी कभी फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है। मेरे से भी कितनी बार हो गया है कि गलत लग गया है, ठीक है। तो वी लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक्स कि सही से नहीं वो हुआ। तो स्टॉप लॉस आपको बहुत सोच समझ के लगाना है, लेवल्स एंड अपना रिस्क प्रोफाइल देख के आपको स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। टारगेट टारगेट आपका सेकेंडरी है, आपको एंट्री भी सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रेड मैनेजमेंट, आप अपने ट्रेड को मैनेज कैसे कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। पीपल इंटर हियर थिंकिंग दैट कि बहुत इजी मनी है यहाँ पे, इट इज नॉट। अगर इतना इजी होता तो हर कोई पैसा बना लिया होता स्टॉक मार्केट से ही, राइट। इट इज नॉट। तो जिस इसमें भी उतनी ही लर्निंग लगती है, उतनी ही मेहनत लगती है, जैसे कोई और भी प्रोफेशन में, जैसे कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जितनी मेहनत लगती है, जितनी पढ़ाई लगती है, तो सेम इज इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बहुत मेहनत है, बहुत पढ़ाई है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कोई सोचते हैं मैं आके पैसा फट फट कमा लूंगा, तो इट इज नॉट दैट इजी, ओके। यू हैव टू गिव लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत टाइम देना होगा, बहुत स्टडी करना होगा,
बहुत रिसर्च करना होगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर लर्निंग एंड रिसर्च, ओके, एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। एंड व्हाट स्टॉकेज इज ट्राइंग टू डू, स्टॉकेज इज ट्राइंग टू मेक योर लाइफ इजी, make your life simple by developing such kind of chart pattern thing which is very unique itself in the market. It is very unique. आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कि जो आपको हजारों स्टॉक्स में से आपको क्लिक ऑफ द माउस में बता दे कि कौन से स्टॉक्स में कौन सा पैटर्न बना है, ओके। दिस इज वेरी यूनिक थिंग। तो ये हुआ आपका असेंडिंग ट्रायंगल, ओके। देन यू कैन सी वन एग्जांपल आई हैव सीन। अभी हम लोग लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे। लाइव मींस जो आजकल में बने हैं, रिसेंटली बने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इट हैज गॉन अप, ओके। देन डिसेंडिंग ट्रायंगल, व्हाट इज डिसेंडिंग ट्रायंगल? डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ बियरिश पैटर्न। ये क्या है आपका? बियरिश पैटर्न है। जैसे कि सिमेट्रिकल था, बोथ आपका अपसाइड भी दे सकता है, डाउनसाइड भी दे सकता है। असेंडिंग ट्रायंगल क्या था? अपसाइड बुलिश था। एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या आपका? बियरिश ट्रायंगल है, राइट। ये एक्सपेक्टेड है कि डाउनसाइड ब्रेकडाउन देगा। तो इट इज उल्टा ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल। ये असेंडिंग ट्रायंगल का उल्टा है, ऑपोजिट है। असेंडिंग ट्रायंगल में हम लोग ने देखा था एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी। इसमें अपने देखेंगे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। उसमें ऊपर में देखा था अपने ने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन थी। यहाँ पे अपने देखे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइस क्या था? डिमांड सप्लाई बैलेंस था, ठीक है। तो प्राइस एक रेंज में चल रहा था। जनरली पैटर्न फॉर्मेशन के टाइम में वॉल्यूम जो है वो स्क्यूज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकडाउन कब होगा इसका? जब ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अपने स्टॉक प्राइस बंद कर देगा, तो ये इसका डाउन साइड ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसका अपने टारगेट कैसे निकालेंगे? सेम जैसे अपने उसमें बाकियों में निकाले थे। हाईएस्ट डिस्टेंस लेंगे, ये हाई और ये लो के बीच में अपने डिस्टेंस लेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, सेम नंबर्स ले रहा हूं मैं। सपोज ये हाई था आपका 200 का, ओके। ये हाई था 200 का, ये लो था 100 रुपीज का। तो डिफरेंस कितना हुआ? 50 रुपीज, ओके। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल क्या है? 100 रुपीज, ठीक है, 150 रुपीज। सो 150 माइनस 50, 100 रुपीज का इसका डाउन साइड टारगेट होगा। 100 रुपीज का डाउन साइड टारगेट होगा, राइट। तो टारगेट और स्टॉप लॉस भी सेम है, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। आप ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, या फिर आप यहाँ इस लाइन के ऊपर बंद हो जाता है प्राइस, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टाइम स्टॉप लॉस, जैसे मैंने आपको कहा था, टाइम स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका स्टॉक नहीं चला तो आप उसमें से निकल गए, ठीक है। तो अपने क्या होता है, टाइम स्टॉप लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने, क्योंकि आपने जब स्टॉक में एंट्री करते हैं ये सोच के करते हैं कि स्टॉक अगर ऊपर का किए तो ऊपर जाएगा, या नीचे का किए तो नीचे जाएगा। बट अगर नहीं जा रहा है कुछ समय के बाद एक रेंज में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, वो स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम देके, ठीक है, अपने जनरली 3 मंथ तक रखते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम फ्रेम भी रख सकते हैं। बट एटलीस्ट 3 महीने तक रखिए, ओके। क्योंकि बहुत से स्टॉक्स ब्रेकआउट दे के रेंज में जाने के बाद फिर वापस से मूवमेंट अपना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर में यू विल गेट अ रिजल्ट, कुछ तो मिलेगा। बट कुछ स्टॉक्स होंगे जिसमें 3 महीने के अंदर में भी रिजल्ट नहीं आएगा, ना ना आपका टारगेट अचीव होगा, ना स्टॉप लॉस होगा। तो वो सब स्टॉक से आप निकल जाइए, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? आई जस्ट गो टू क्वेश्चन राउंड एंड देन स्टॉप लॉस सिस्टम लगाना चाहिए या जीटीटी ऑर्डर? सोलेश जी सोहेल जी, स्टॉप लॉस जो है, ये स्टॉप लॉस आपका जो है आपका, आई थिंक जीटीटी ऑर्डर गुड टू ट्रेड हर में सॉफ्टवेयर में मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप डे टू डे भी लगा सकते हैं या जीटीटी भी लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। बट जीटीटी में क्या होता है, कितनी बार आपका सुबह में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट आते हैं, राइट। तो वॉलेटाइल मूवमेंट की वजह से वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर वापस अपने, वो एक जस्ट एक क्लिक, एक मिनट के प्राइस वो नीचे आता है बिकॉज ऑफ द जस्ट वॉलेटिलिटी, और उसके बाद वो, तो जीटीटी ऑर्डर में कितनी बार ऐसा हो सकता है कि आपका स्टॉप ट्रिगर करके ऊपर बन जाए। तो इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट डे एवरी मॉर्निंग आप अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लें, ओके, टू अवॉइड दैट वॉलेटिलिटी जो ओपनिंग में होती है स्टॉक मार्केट में जनरली। स्टॉक एज
में चार्ट पैटर्न, हाँ स्टॉकेज में मैं आप दिखाऊंगा स्टॉकेज का चार्ट पैटर्न। ओके, तो अभी तक अभी व्हाट इज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, ठीक है, मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताऊंगा। ओके, देखिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये टर्म है जो स्टॉक मार्केट में यूज होता है। ओवरबॉट मतलब लगता है कि बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है या कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक है, तो उसको अपने ओवरसोल्ड बोलते हैं। दे आर सर्टेन इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि ओवरबॉट हो गया या ओवरसोल्ड हो गया। ओवरबॉट मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक यहाँ से गिर जाएगा, या ओवरसोल्ड मतलब ये नहीं होता कि वहां से वो बढ़ने लगेगा। अगर स्टॉक वीक है तो काफी टाइम तक ओवरसोल्ड रह सकता है, या बहुत स्ट्रांग है तो काफी टाइम तक वो ओवरबॉट जोन में रह सकता है। अपने पास इंडिकेटर्स है जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई है, ठीक है, अपने के सीसीआई है, चैनल कमोडिटी चैनल इंडेक्स है, ठीक है, विलियम्स आर है, जो एक रेंज बॉन्ड बताते हैं कि ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड आपका सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट में काम करता है, रेंज बॉन्ड मार्केट में। बट ट्रेंडिंग मार्केट में वो स्टॉक अगर ओवरबॉट में है तो वो और भी ओवरबॉट रह सकता है और काफी ऊपर तक जा सकता है। ओके, ओके, सो नाउ नेक्स्ट अपने आई जस्ट गो टू स्टॉकेज ऐप में चलता हूँ एक बार। आई एम चेंजिंग द स्लाइड, चेंज कर रहा हूँ मैं। सबको स्टॉकेज ऐप दिख रहा है ना? तो अंडर स्टॉकेज ऐप यू कैन सी अंडर प्रो एनालिटिक्स एक है आपका चार्ट पैटर्न्स का, वो है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो हियर यू कैन सी चार्ट पैटर्न्स, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पैटर्न है और बाकी पैटर्न्स का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो अंडर ट्रायंगल पैटर्न देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइट। इसमें आप देखिए येलो कलर टाइप है, ठीक है, येलो ऑरेंज टाइप कलर है, इसमें ग्रीन है, इसमें रेड है। ग्रीन मीन्स बुलिश, रेड मीन्स बियरिश। और ये आपका क्योंकि एनी साइड डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट दे सकता है, ऊपर के या नीचे में, इसीलिए इसमें एक अलग कलर दिया गया है, ना ग्रीन दिया गया है ना रेड दिया गया है, ठीक है। तो एनी साइड इट कैन गिव अ ब्रेकआउट। फिर यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ टैब कॉल रीसेंट एंड पास्ट। रीसेंट मतलब हाल फिलहाल में जो स्टॉक्स अभी इसमें आए हैं, और पास्ट मतलब जो इसमें आए थे पहले अब उसको निकल चुके हैं इसमें से, आइदर उनका टाइम फ्रेम अचीव हो चुका है, वो एक टाइम फ्रेम को पास कर चुके हैं, या उनका रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो वो रिसेंट से पास्ट में चले गए, ठीक है। देन यू कैन सी देयर इज अ टैब कॉल मेजर स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ फिल्टर करके स्टॉक्स को अपने चुन सकते हैं, अपने ऑल एनएससी स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स, एनएससी एफएनओ स्टॉक्स, निफ्टी 50। तो आप यहाँ से चुन सकते हैं कौन से स्टॉक्स का आपको चाहिए। जनरली वी रिकमेंड यू टू मेजर स्टॉक्स, अपने बाय डिफॉल्ट जो है वो मेजर स्टॉक्स रहता है, ठीक है, जिनमें आपके लिक्विडिटी अच्छी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, वो सब आपके मेजर स्टॉक्स में आते हैं, राइट। सो लेट्स ओपन सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल रिसेंट 26 मई को, आप देखिए 26 अप्रैल को अशोक लेलैंड में सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक का नेम है, पैटर्न है, किस डेट में फॉर्म हुआ है, कौन एक्सचेंज में फॉर्म हुआ, प्राइस पॉइंट किस प्राइस पे हुआ है, और इसका क्या अभी प्राइस है। तो लेट्स ओपन सॉरी अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड का देखिए ये आपका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ब्रेकआउट के टाइम यू कैन सी देयर इज अ गुड वॉल्यूम हैज आल्सो कम अप, ठीक है। जब ये देखिए यहाँ पे पैटर्न, ये टॉप बनाया था, यहाँ पे एक वॉल्यूम था, उसके बाद जैसे ही एक रेंज में जाने लगा, पैटर्न फॉर्मेशन के टाइम में वॉल्यूम इसका एक एवरेज वॉल्यूम में आ गया, ओके। और यहाँ पे अगेन वॉल्यूम इसका बढ़ा है और ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट कि सब लोग मुझे बताइए कि इसका टारगेट क्या होगा। आप लोग कैलकुलेट कीजिए, आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग द टारगेट ऑफ अशोक लेलैंड, कि अपने टारगेट इसका क्या होगा, ठीक है। प्लीज आप लोग लिख के बताइए मेरे को चैट में। एनी आंसर्स? चलिए देखता हूँ। ओके, तो बहुत से आंसर्स आए हैं।
ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। गिरीश जी 192, प्रभाशंकर जी हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, दयाकाश जी 200, कामनी जी 219, दीपक शर्मा जी F23, व्हाट इज F, राहुल गुप्ता जी 192 प्लस 40 फ्रॉम बाई जोन 180, 200 आनंद प्रकाश जी 200, रुद्र जी 210, दीपक शर्मा जी 240, सिमन जी 206, परमजीत जी अराउंड 220, 210, ओके, चंद्रशेखर जी 196, कामनी जी 219, ध्रुवा जी 210, भवेश जी 210, ओके। सो मोस्ट पीपल आर अराउंड 200 210 ऐसे ही टारगेट दे रहे, राइट। तो मेरा भी जो टारगेट आया है वो आया है अराउंड 203, 203 का टारगेट आया है। तो मैंने ये हाई जो है कि अराउंड 187 का हाई है, ओके, 187, और मैंने ये लो लिया है, ठीक है, जो कि आपका 165 का है, ठीक है। तो अराउंड 23 रुपीज का डिफरेंस आया है, ये हाई और ये लो के बीच में 23 रुपीज का डिफरेंस आया है, ओके। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट था 180, 180 में मैंने 23 रुपीज ऐड किया, तो आई गॉट अ टारगेट ऑफ 203, ओके, 203 का टारगेट मेरे को मिला। नाउ व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? आप दो तीन स्टॉप लॉस बता सकते हैं। पहला मैं पूछ लेता हूँ, अगर ब्रेकआउट कैंडल के लो के, अच्छा अच्छा, पहले मैं पूछता हूँ स्टॉप लॉस के हिसाब से, रिस्क 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 इज टू रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होगा? एक 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या होगा टारगेट? तो अब तक 23 का आया था, राइट, 23 का स्टॉप लॉस था, टारगेट था 23 पॉइंट्स का। तो स्टॉप लॉस अपने अराउंड 12 रुपीज नीचे रख सकते हैं, राइट। तो 12 मतलब 180 माइनस 12 मीन्स 168 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। अगर 168 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका लो कितना है, 177.40। तो वह, और जिसको और भी छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो वो इस लो के नीचे भी रख सकते हैं। ये कैंडल का लो है 177.05, 177। तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, जो मैं आपको बोल रहा था ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रख सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, और इसके बगल में एक और छोटी सी कैंडल है। तो ये लो के, इस लो के नीचे आप जैसे कि 177 और 175 का फिल्टर देके 175 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा हो जाएगा, राइट। जो 1:2 के हिसाब से लेना चाहते हैं उनका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 168 का हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये 168, और ये लो है, इसका लो है 166, इसका लो है 166। और अब मैं आपको बताऊंगा अब स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करूँ। तो इसका स्टॉप लॉस है 168, हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। यहाँ के हिसाब से आ रहा है 177 का स्टॉप लॉस, या 175, ओके, 2 पॉइंट नीचे। और यह 168 और 168 और 166 वेरी क्लोज है। तो यहाँ पे आपका एकदम, यहाँ पे निकल ही जाना है 166 के नीचे। तो आप अपना स्टॉप लॉस 175, 168 या 166 के नीचे रख सकते हैं, ओके। अगर 166 रखते हैं तो आपका 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी आज फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके नीचे रखते हैं तो आपका तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के भी नीचे है, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का भी हो जा रहा है, और इस कैंडल के नीचे का भी हो जा रहा है, ये लाइन के नीचे। तो सब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। अब नाउ मैंने आपको तो सब बता दिया कि स्टॉप लॉस क्या रखना है। अब आप कौन सा रखेंगे, दैट डिपेंड ऑन योर रिस्क कैपेसिटी। जो यहां तक का स्टॉप लॉस नहीं देख सकते हैं 180 से लेके 165 तक या 166 का, वो क्या करेंगे, वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। क्लियर? ऑल क्लियर ऑन दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए टारगेट तो सबके लिए सेम होगा, निकालने का तरीका जो मैंने बताया। स्टॉप लॉस डिफर कर सकता है आपके रिस्क कैपेसिटी के ऊपर। मैं थोड़ा ही रिस्क लूंगा, मैं इससे इस कैंडल के नीचे अगर चला जाएगा तो मैं
लो के तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। कोई यहाँ तक का वेट कर सकते हैं और लास्ट आप यहाँ इस कैंडल के लो के नीचे का वेट कर सकते हैं, ओके। तो दैट इज द अनदर वे। क्लियर? होप एवरीबडी इज क्लियर। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? I have a question. Instead of plain stop loss, can I put strategy like bull spreads, ratio spread, future buy put, manage the risk with using with uh रुतराज जी, दिस ये आपका, अब मैं यहाँ से आपको डायरेक्शन तो बता दिया कि बुलिश होगा कि बेरिश होगा। आप एफएनओ में आप स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं अपने तरह से, ठीक है। एफएनओ में आप, आपको डायरेक्शन नाउ पता है कि किस हिसाब से जाएगा डायरेक्शन, उस हिसाब से यू कैन मेक अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। वो कॉल पुट और फ्यूचर के हिसाब से आप रेशियो स्प्रेड करके आप बना सकते हैं, ठीक है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। असेंडिंग ट्रायंगल आरएसआई डाइवर्जेंस कैसे चेक करें, और आरएसआई अब 50 होना चाहिए या क्या? तो देखिए, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जनरली ये पैटर्न्स के साथ आप जब भी देखें, ये पैटर्न्स, अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं अपना अशोक लेलैंड का, ठीक है। तो अशोक लेलैंड में यहाँ पे अपना आप सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं, ठीक है, अगर सुपर ट्रेंड बाय है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने कंफर्मेशन के लिए आप कोई भी वो लगा सकते हैं, इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, आप आरएसआई लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आरएसआई देख लीजिए, तो यहाँ पे आरएसआई 50 के ऊपर है, ठीक है। तो आरएसआई अगर 50 के ऊपर है तो आपको ये कॉन्फिडेंस देगा, ओके। इट इज बेटर कि आरएसआई 50 के ऊपर हो, ठीक है। अगर अगर आरएसआई भी 50 के ऊपर है, आरएस भी पॉजिटिव है, और सुपर ट्रेंड भी बाय दिखा रहा है, और आपको चार्ट में पैटर्न में ब्रेकआउट भी दिखा रहा है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस देगा मुझे को, मेरे को, कि मैं वो स्टॉक में एंट्री लूं, ठीक है। और वॉल्यूम भी है, तो ऑल दिस थिंग विल गिव मी कॉन्फिडेंस। अब मान लीजिए यही ब्रेकआउट हो रहा होता, बट मुझे सुपर ट्रेंड अगर बियरिश दिख रहा होता, आरएसआई 30 के आसपास में या 50 के नीचे दिख रहा है, तो मेरे को क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस का थोड़ा कमी रहेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप अपने जो भी पैटर्न्स बने आप सब में ट्रेड ले लें। यू हैव टू बी सेलेक्टिव। अगर आपके पास 10 स्टॉक्स आ रहे हैं, स्टॉकेज के ऐप में अगर 10 असेंडिंग ट्रायंगल में ब्रेकआउट में आ रहे हैं, तो उसमें से बट आपको अगर 2 ही स्टॉक्स लेना है, तो बेस्ट मैं कौन सा स्टॉक लूं? एक में आरएसआई बिलो 50 है, एक में आरएसआई अबव 50 है, एक में आरएसआई सुपर ट्रेंड बाय है, ओके, और एक में डाउन है, राइट। तो मैं प्रिफर करूंगा जिसमें मेरा ब्रेकआउट भी हो रहा है और साथ साथ मेरे को अदर पैरामीटर्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो मैं उसमें स्टॉक उसमें एंट्री लूंगा, राइट। और दूसरा है कि मैं देख रहा हूँ मार्केट, अगर ओवरऑल जनरल टेंडेंसी ऑफ द मार्केट क्या है, अगर कोई मार्केट का ट्रेंड अप है, उसमें मेरे पास एक बुलिश कॉल भी आ रहा है, एक बेयरिश कॉल भी आ रहा है, तो उसमें मैं कौन सा लूं? मैं बुलिश कॉल लूंगा। सो योर सिलेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसमें से हो सकता है बुलिश ट्रेंड में भी कोई स्टॉक बेयरिश मोड दिखा रहा हो, ठीक है। तो अपने को बट क्या है, मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट के साथ चलना है। बुलिश ट्रेंड में वी विल ट्राई टू प्ले ऑन अ बुलिश स्ट्रेटेजी, बेयरिश ट्रेंड में वी विल ट्राई टू प्ले ऑन अ बेयरिश स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो बहुत लोग का ऐसा कहना होता है कि सर मैंने तो इसमें काम किया बट ये लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? सिर्फ आपको स्टॉकेज पैटर्न दिखा के दिखा रहा है, बट उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको अपने हाथ में है, कैसे यूटिलाइज करना है। अगर ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बुलिश है तो आप बुलिश ट्रेंड बुलिश स्टॉक लीजिए, ठीक है। अगर बुलिश ट्रेंड में आप बेयरिश स्टॉक लेंगे तो हो सकता है उसमें आपका सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं हो, ठीक है। बट विद द मार्केट के साथ आप चलेंगे तो आपका सक्सेस रेट अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए चार्ट पैटर्न का जो सक्सेस रेट है, बहुत लोग पूछते हैं लाइक व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ दिस चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न सक्सेस रेट इज जनरली 65 to 70%, ठीक है। बट स्टिल मैं बोलूंगा ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड कर सकता है। कैसे? सपोज मेरे लिए हो सकता है वो 60% हो और आपके लिए वो हो सकता है 80% हो जाए। वाई? बिकॉज मैं जब बुलिश मार्केट था, मैं बियरिश कॉल्स ले रहा था और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जा रहा था, राइट। और आप क्या कर रहे थे? बुलिश मार्केट था, आप बुलिश ही ट्रेड ले रहे थे, तो आपके चांसेस क्या हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट आपके ज्यादा हो गए। तो आपके लिए वो क्या हो गया, 80% का हिट रेशियो हो गया। मेरे लिए मे बी वो लेस देन 50% हो जाए या 40% भी हो जाए, क्योंकि आई वॉज प्लेइंग द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट। तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
सिर्फ पैटर्न जस्ट ब्लैंकली आया, पैटर्न मैंने आया, मैंने बाय कर लिया, तो मैं वैसे नहीं करना है, राइट। तो आपको बाकी ओवरऑल सिनेरियो देखना है। बहुत लोगों का फिर क्वेश्चन होता है कि कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है। तो जनरली आपको मार्केट देख के, आप कोई भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे कोई सी का भी, तो आप बता सकते हैं कि वो ट्रेंड अप है या डाउन है। बट देयर आर अदर वेज ऑल्सो कि मूविंग एवरेज अगर है, ठीक है, मूविंग एवरेज अगर कोई भी 200 जनरल मार्केट में ट्रेंड अप बोला जाता है, अगर कोई भी स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो ट्रेंड अप है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज देखते हैं, राइट, 20 डे एंड 50 डे। और लॉन्ग टर्म के लिए 200 डे मूविंग एवरेज। तो जनरल ट्रेंड ऑफ द मार्केट अगर अप है तो यू गो विद अ बुलिश ट्रेंड, ठीक है। और जनरली बुलिश मार्केट में क्या होता है, आपका 20 डे और 50 डे एक्ट एज अ सपोर्ट, वो सपोर्ट करने, सपोर्ट लेवल बन जाता है, ठीक है। 20 डे मूविंग एवरेज में जनरली अगर कोई बुलिश अप ट्रेंड मार्केट है तो 20 डे मूविंग एवरेज के पास अगर आएगा तो वहां पे उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, वहां से बाउंस बैक दे सकता है, ठीक है। तो 20 डे एंड 50 डे एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट इन अ बुलिश मार्केट, राइट। और वैसे ही अगर कोई डाउन ट्रेंड मार्केट में है, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, राइट, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो 20 डे एंड 50 डे क्या होता है, वो आपका रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है उसके लिए भी, वो अपसाइड, ठीक है। तो ये जनरल बात है। तो होप ये आप लोग को क्लियर आ गया। अच्छा, आई एम जस्ट समबडी इज रेजिंग हैंड, शत्रुघ्न जी, ठीक है, मैं क्वेश्चन राउंड में जाता हूँ। जी शत्रुघ्न जी बताइए, प्लीज राइट योर क्वेश्चन। यू कैन टाइप डाउन योर क्वेश्चन। ओके, एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चन? भावेश जी ने पक्का स्टॉप लॉस 165 का परफेक्ट स्टॉप लॉस रखा है। 168 का भी जिसने स्टॉप लॉस रखा है वो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस रखा गया है, ठीक है। तो 168 आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राहुल जी ने भी 168 का स्टॉप लॉस इसमें रखा है। सॉरी, इफ प्राइस विल नॉट कम टू 180 देन वी कैन बी बाय एट करंट मार्केट प्राइस। हो सकता है कितनी बार, वेरी गुड क्वेश्चन ओमकार जी, प्राइस कितनी बार हो सकता है आपका 180 नहीं आए, ठीक है। और कितनी बार होता है कि स्टॉक रिट्रेस भी करके प्राइस 180 के नीचे भी आके फिर वापस से बढ़ जाता है रिट्रेस करके, और कितनी बार नहीं भी करता है। तो वो अपने को पता नहीं है कि रिट्रेस करेगा कि नहीं करेगा। तो अपने देख रहे हैं कि 180 से 180 ज्यादा ऊपर नहीं है, अपने अराउंड 2.5-3% ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार पोजीशन ले सकते हैं। कब लेंगे? अगर कैंडल के हाई के ऊपर चलने लगे, ये कैंडल के हाई के ऊपर अगर चलने लगे, मींस 187.20 के ऊपर चलने लगे, तो इंटरडे में अगर चले तो आप बाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर नहीं बाई करेंगे तो क्या हो सकता है, वी कैन मिस एन अपॉर्चुनिटी। फिर कितनी बार ऐसा होगा कि ब्रेकआउट प्राइस जो है कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज होगी। तो ज्यादातर जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होंगे वो ऐसे ही होंगे कि आपको एकदम एग्जैक्ट ब्रेकआउट प्राइस के पास में नहीं मिलेगा। तो आपको ऊपर लेना होगा या वेट करना होगा। अब वेट करता हूं तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है कि वापस वो आएगा या वापस बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 50% ऑफ दी अपना जो भी स्टॉक्स आपको लेना है, आप ब्रेकआउट होने के बाद ले लीजिए। ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर चला, देन यू बाय 50% ट्रेड अपना ले लीजिए। बाकी 50% अगर ट्रेड नीचे आता है, रिट्रेस बैक करता है, देन अगेन यू कैन इंटर 50%, राइट। और मान लीजिए अगर नहीं रिट्रेस किया, सिर्फ 50% में ही आपने पोजीशन बनाया और प्राइस और ज्यादा ऊपर चला गया, देन डोंट चेज द स्टॉक, 50% में ही रहने दीजिए और बाय मत कीजिए। ओके, वेट फॉर द टारगेट टू अचीव विद दैट 50% ऑफ द क्वांटिटी ओनली। ओके, ओमकार जी क्लियर है? सर ट्रायंगल पैटर्न कितना लॉन्ग टाइम पीरियड होना बेटर होता है? 6 मंथ्स टू 1 ईयर। सुहेल जी ठीक है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर में पैटर्न फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। ओके, when we have to hold for 1 or 2 week, then we have to place stop loss on daily basis। स्टॉप लॉस आप डेली बेसिस में, आप जीटीटी ऑर्डर आपके अगर उसमें मिलता है तो यू कैन प्लेस जीटीटी ऑर्डर। बट जीटीटी ऑर्डर का एक वो मैंने कहा था कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, कोई रिजल्ट सीजन है, ठीक है, या कोई गैप डाउन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर वापस आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, वापस प्राइस बढ़ जाए। तो आप डेली स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसमें, राइट। मार्केट एक बार ओपन होने के बाद
आप वापस से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बेटर है आप डेली बेसिस में लगा लें स्टॉप लॉसेस। हाउ टू क्रिएट ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जैसे मैंने कहा था आपका, ये दो कन्वर्जिंग लाइन से बनता है, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। आप अपने हाइस को जोड़ेंगे, ठीक है, लोअर हाइस को जोड़ेंगे एंड हायर लोस को जोड़ेंगे तो आपको वो मिलेगा, ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट होगा। ओके राजन जी, मैंने आपको पहले दिखाया था यहाँ पे टारगेट। टारगेट आई ऑलरेडी डिस्कस, इसका टारगेट कैसे शेयर करते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं। ऑल स्टॉक्स देख लेते हैं अपना कि किसमें क्या बना है और उसमें टारगेट पे फिर एक बार वर्क कर लेते हैं, राइट, सो दैट एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द टारगेट। तो यहाँ पे आप लोग एक यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट हुआ है और अपने ब्रेकआउट कैंडल के पास में ही है, ठीक है। यहाँ पे 149 में है, 150 149 पॉइंट ऑलमोस्ट पास में ही है एलटीपी के। फिर केपीआर मिल में अगर देखेंगे ये भी पास में है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट लेवल का ही सपोर्ट ले रहा है, देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट कैंडल का सपोर्ट लेके ऊपर बंद हुआ, फिर ब्रेकआउट कैंडल के सपोर्ट के पास में ही प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है, राइट। नाउ आई एक्स, प्लीज कैलकुलेट द टारगेट ऑफ आई एक्स। आप लोग तो क्या अपने ये कैलकुलेट करते हैं ताकि इससे अपना क्लियर हो जाएगा टारगेट, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं टारगेट फाइंड करने में, टारगेट क्या होगा। तो इसीलिए मैं टारगेट के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू फाइंड द टारगेट, ठीक है। तो प्लीज एवरीबडी कैलकुलेट द टारगेट, आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग। हो गया सबका? ओके, जितने जिन्हें टारगेट लिख लिया है बता दें। ओके, दीपक शर्मा जी 199, आईफोन टारगेट 200। आईफोन जी आप अपना नाम चेंज कर लीजिए प्लीज। निजाम जी 52 प्लस 52 माइनस 26, ओके। भाईजू जी 195, जुबा जी 198, संकेत जी पटेल जी 189, किसी ने अपना नंबर लिखा है 972, उनमें 200, ठीक है। प्रमजीत कह रहे हैं, प्रमजीत जी कह रहे हैं इसमें वॉल्यूम कम है, केपीआई मिल में ट्रेड ले सकते हैं, ओके डिस्कस करेंगे। एम के जी 204, ठीक है। तो बहुत लोगों का टारगेट जो है 195, 198, 200, 205 ऐसा टारगेट आ रहा है। मैं भी अपना टारगेट बता देता हूँ। मेरा जो टारगेट आया है 205 का आया है, 205 का। तो जो उन्होंने भी मतलब 200, 205 या 195 के आसपास टारगेट लिखा है, दे ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, ओके। तो कैसे मैंने 205 का किया, तो मैंने इसका हाई लिया, ठीक है, इसका हाई था आपका 173 और ये लो लिया मैंने 121। तो 173 माइनस 121 आया मेरे को 52 रुपीज, ओके। और उसको मैंने इसका ब्रेकआउट पॉइंट था 53 रुपीज, तो मैंने उसमें जोड़ा तो 205 का टारगेट आया, ठीक है, क्लियर। तो 205 का टारगेट आया, तो उसी हिसाब से अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि 52 रुपीज का टारगेट था तो 26 रुपीज नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो 150 या मैंने कहा था ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो उसका क्या आएगा, तो उसका लो है 149। तो यहाँ देखिए अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मेरा आ रहा है वन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मेरा यहाँ पे 153 का क्लोज था, तो 153 माइनस 26, सो 153 माइनस 26 करेंगे अपने,
127, तो अपना स्टॉप लॉस आ रहा है अराउंड 127। 127 तो काफी, क्योंकि इसका टारगेट भी बड़ा है तो स्टॉप लॉस भी नीचे हो जाएगा। तो 127, तो ये लो है 130, तो मींस ये लो के नीचे आएगा। तो ये लो के नीचे जब बंद होगा तब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ओके, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से तब आपका टारगेट अचीव होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? तो स्टॉप लॉस अगर इस ये 1:2 के तरफ, दूसरे लोग जो ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देखना चाहते हैं, कम स्टॉप में कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस क्या सजेशन होगा? ये ब्रेकआउट कैंडल थी, ठीक है, 150 यहाँ के इस कैंडल के या इस कैंडल के नीचे, क्योंकि ये कैंडल आसपास में, तो ये लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 147 के नीचे। ओके, 147 के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दैट इज अनदर वे। तो स्टॉप लॉसेस में क्या बोल रहा था, तो परफेक्ट में हो जाएगा आपका, परफेक्ट स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, आपका हर हर क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो जा रहा है। पूरा स्टॉक को रिवर्स होना होगा, ठीक है, पूरा, तब ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा 1:2 के हिसाब से। और इसमें टारगेट क्योंकि बड़ा है तो स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा आ रहा है। ठीक है, और जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं वो यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे। ओके, क्लियर? तो ये आपके रिसेंट में थे, पास्ट में भी यू कैन सी देयर सम स्टॉक्स जो पास्ट में हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 22 अप्रैल को बना था तेजस नेटवर्क, ठीक है, आइशर मोटर, ये सब पहले आपके स्टॉक्स आके जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, वैसे ही आप असेंडिंग ट्रायंगल में यू कैन सी अभी ये अभी रिसेंटली कोई पैटर्न नहीं बना, ये बहुत, ये पास्ट का दिखा रहा है। रिसेंट 24 अप्रैल को इसमें बना है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम भी जंप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एक बुलिश कैंडल के साथ में। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इस कैंडल के नीचे रख सकते हैं, या यहाँ आप, क्योंकि ये और ये लेवल दोनों पास पास में ही है, तो बेटर है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे इसके नीचे, आपका उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप हाई और ये लो का डिफरेंस निकाल के इस पॉइंट, ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे तो उसका आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं टारगेट कैलकुलेशन में और नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डन। क्लियर? ओके, तो ये अभी एक ही स्टॉक आया है आपका असेंडिंग ट्रायंगल में। देन देयर इज डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, बर्जर पेंट्स 16 अप्रैल को आया है, बर्जर पेंट्स क्या प्राइस पॉइंट पे, 542 पे आया है। ये देखिए, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया है, उसके बाद प्राइस हैज गॉन डाउन। ओके, तो वापस से ये मैं ट्रायंगल पैटर्न खत्म हो गया है। एनी क्वेश्चन? ब्रेकआउट में फुल क्वांटिटी डिप्लॉय करें या स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करना चाहिए, विच इज बेटर? आई विल से इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसको अलग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, जस्ट एक कहावत है, डोंट ट्राई टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ ओशन विद बोथ ऑफ योर फीट। मतलब दोनों पांव से अपना जो ओशन का डेप्थ को नहीं देखना चाहिए कि समंदर कितना गहरा है, तो एक पाँव डाल के देखिए, राइट, ये उससे आपको अंदाजा लगा लेना होगा कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि थोड़े से स्टार्ट कीजिए और वापस से यू कैन इंक्रीज द प्राइस। ओके सोहेल जी? ओके, सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न, ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग, कोई भी क्वेश्चन है, किसी को भी अगर कुछ नहीं समझ में आया प्लीज आप मुझे बताइए, सो दैट आई कैन ट्राई टू क्लियर इट आउट। क्या ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम एंड ऐसा ऐसा ही देखना जरूरी होता है? देखिए जरूरी तो नहीं है, बट अगर ज्यादा वॉल्यूम और आरएसआई अप है तो आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा। ब्रेकआउट जब वॉल्यूम के साथ होता है तो अपने को एक कॉन्फिडेंस देता है, बट कई बार होता है कि ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ नहीं भी होता है बट इसके बाद भी स्टॉक चलता है। तो हाँ, अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो रहा है इट विल गिव मी अ कॉन्फिडेंस टू बाय। ठीक है, मगर बट ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना मार्केट में कि वॉल्यूम के साथ अगर
ब्रेकआउट हुआ है तो एकदम कंफर्म ही है कि वो नहीं गिरेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बेटर ये है, आप आरएसआई देखिए, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखिए, चार्ट पैटर्न देखिए, कैंडल का स्ट्रेंथ देखिए, कैंडल का जैसे कि अपने अभी जैसे कि मैंने अशोक लेलैंड का कैंडल देखा अभी यहाँ पे, उसका ब्रेकआउट कितना अच्छा लग रहा था, देख के ही लग रहा है कि इट्स अ गुड ब्रेकआउट। ठीक है, तो मैं एक विजुअल डिस्कशन के ऊपर जा रहा हूँ। आप इस कैंडल में फर्क देखिए, और भी ब्रेकआउट का कैंडल दिखाता हूँ। अब मुझे एक अशोक लेलैंड का ब्रेकआउट का कैंडल मिला है, राइट। और एक मेरे को अभी हम लोग ने और भी पैटर्न देखे थे, जिसमें केपीआर मिल देख लेता हूँ। और एक ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो आपको किसमें ज्यादा कन्वेक्शन मिलेगा कि स्ट्रेट लू में? आपको ज्यादा कन्वेक्शन किसमें आएगा, अशोक लेलैंड में आएगा या केपीआर मिल में आएगा? आंसर, एनी आंसर? दोनों बुलिश पैटर्न है। संजीव जी का आंसर है अशोक, प्रभा जी का आंसर है अशोक, अशोक, अशोक। तो यू ऑल ऑलरेडी नो, मैं क्या बताऊं तो किसमें ट्रेड लेना है? देखिए दोनों बुलिश स्टॉक आए, ठीक है। ऑल द आई एम वेरी हैप्पी कि सारे पार्टिसिपेंट ने अशोक लेलैंड आंसर लिखा है। तो मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आया। क्राफ्ट्समैन में भी अच्छा, अब क्राफ्ट्समैन, रुद्र जी का कहना है क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन में भी देख लेते हैं अपने, ठीक है। अब तो अशोक लेलैंड और केपीआर मिल में तो आपने डिसाइड कर लिया, अब अपने क्राफ्ट्समैन में भी देखते हैं, ठीक है। तो ये क्राफ्ट्समैन का है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। तो ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब अपने को मान लीजिए दो स्टॉक लेना है आउट ऑफ थ्री स्टॉक्स, क्राफ्ट्समैन है, अशोक लेलैंड है, और आपका केपीआर मिल है। तो विच टू यू विल गो फॉर? ऑब्वियसली विल गो फॉर क्राफ्टमैन एंड अशोक लेलैंड, ठीक है। अब आपको अशोक लेलैंड और क्राफ्टमैन में चुनना है तो कौन सा लेंगे? अगेन नाउ द क्वेश्चन इज बिकमिंग मोर चैलेंजिंग नाउ, क्योंकि देखिए इसमें भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, राइट। इसमें भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, करेक्शन हल्का सा दिया, फिर वापस से ऊपर चलने लगा। और अशोक लेलैंड में भी अपने ने देखा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अब दो में से एक लेना है तो किसमें लेंगे? एनी आंसर्स? ये तो मुझे ही बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, किसमें लूं? अशोक, द रीजन इज अशोक कैन प्ले विथ वॉल्यूम। ओके, अशोक जी, चंद्र जी, अशोक ट्रेड ब्रेकआउट के बाद ही लेना चाहिए दोनों। तो दोनों तो राजन जी आपने कहा, मैं कहा दोनों से एक में लेना है, अशोक लेलैंड, ठीक है। तो देखिए दोनों का अपना अपना एक एडवांटेज है, मैं बता दे रहा हूँ। आरएसआई पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों का अपना, देखिए इसमें भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ एक पैटर्न में, बट दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस लोग समझ तो जाते हैं कि पैटर्न क्या है, उसके बाद भी गलती हो जाती है। तो ये सब गलतियां ना हो, इसीलिए आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि आप लोग को बस बता के खत्म करना है, ऑब्जेक्ट इसके आपको लोगों को सब वापस समझ में आए, कुछ लेके जाए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है, अच्छा है। तो इसकी जो कैंडल्स है बहुत ब्रेकआउट के ऊपर बंद हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे वो कैंडल क्राफ्टमैन में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी ब्रेकआउट कैंडल जितनी की इसमें थी। बट क्राफ्टमैन का आपको एक और एडवांटेज मैं जो दिखा दे रहा हूँ, वो क्या मैंने देखा इसमें, कि उसने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके वापस से बढ़ने लगा। ये देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इसने प्राइस को रीटेस्ट रीटेस्ट किया, ठीक है, और वापस से इट इज गोइंग अप। तो रिट्रेस करके वापस जब जाता है तो वो भी एक अनदर स्ट्रेंथ वाला साइन हो जाता है, जो कि अशोक लेलैंड में अभी वो रिटेस्ट हुआ नहीं है, होना बाकी है। रिटेस्ट करेगा या वो कंटिन्यू करेगा, आई डोंट नो, ठीक है। दैट मार्केट विल टेल अस क्या करेगा, ठीक है। तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, आप दोनों में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेरी तरफ से तो दोनों में ग्रीन सिग्नल है मार्केट, बट अपने को स्टॉप अपना जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो रखना है, ठीक है। और बाकी जो है वो अपने अपना कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर है, प्राइस पे कंट्रोलिंग नहीं है, तो मार्केट जो प्राइस देगा वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। सो बोथ आर लुकिंग गुड, ठीक है। तो आप दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है अपना ये पोजीशन, आई थिंक। ओके, थैंक यू सोहेल जी फॉर द फीडबैक। ओके,
रीजन इज अशोक हाई इज नॉट ब्रोकन। तो आप इसके साथ अदर कॉम्बिनेशन आप, अब ये तो आपको बेसिक पैटर्न तो मिल गया, हजारों स्टॉक्स में से आपको ये तो पता चल गया। वरना अगर ये स्टॉकेज ऐप में अगर ये चार्ट पैटर्न नहीं होता तो मुझे कौन बताता कि कौन सा पैटर्न किसमें बना है। अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है कि जो हमको बता दे कि इसमें ये पैटर्न बना है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ स्टॉकेज, एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, स्टार्ट यूजिंग इट। ठीक है, प्रैक्टिसिंग इट, और एक एक पैटर्न को मास्टर कीजिए, थोड़े थोड़े अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, सो दैट वंस यू मास्टर इट देन यू कैन टेक बिग ट्रेड्स, यू नो, बिग, उसमें आप लगा सके। फर्स्ट मास्टर विद अ स्मॉल अमाउंट एंड देन यू कैन टेक बिगर रिस्क। ओके, इज इंपॉर्टेंट टू सी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन। अगर कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट नहीं करे तो उसमें ट्रेड नहीं करे क्या? देखिए, कोई ट्रेड नहीं कर, ये चार्ट पैटर्न का लॉजिक है। अगर ब्रेकआउट नहीं करे तो आप अगर रिस्क लेना, ये ब्रेकआउट पे आप अगर नहीं आप करना चाहते हैं, जनरली पैटर्न्स का ब्रेकआउट पे ही ट्रेडिंग किया जाता है। बट अगर आप करना चाहते हैं, ये पैटर्न के आउटसाइड में आपको बता रहा हूँ, ये पैटर्न का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप करना ही चाहते हैं, ठीक है, तो आप पैटर्न के सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, पैटर्न के रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। मान लीजिए ये पैटर्न का रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे आप सेल कीजिएगा, सपोर्ट पे बाई कीजिएगा। वो आप बीच बीच में कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैटर्न। पैटर्न का जो क्राइटेरिया है वो ब्रेकआउट पे ही किया जाता है, राइट। और उसके बीच में अगर आपको कुछ करना है देन यू कैन प्ले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप सपोर्ट पे बाई कीजिए, रेजिस्टेंस में सेल कीजिए, रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। सपोर्ट में अगर आप बाई कर रहे हैं तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप बाई कीजिए, टारगेट आप रेजिस्टेंस लेवल का रखिए। तो दैट यू ऑल कैन डू ऑलवेज। आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट मैं आपको बता रहा हूँ जो पैटर्न जो हिसाब से वर्क करता है, दैट आई एम टेलिंग यू, राइट। क्लियर? ओके, और मैं अब एक पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग के साथ। होप यू आप लोग अगर कंटिन्यू करना चाहें तो आई विल कंटिन्यू। अगर आप लोग थक गए हैं या बोर हो गए हैं तो आई आई नॉट कंटिन्यू, बिकॉज आई बिलीव तभी करना चाहिए जब लोगों का इंटरेस्ट रहे। ठीक है, तो अगर प्लीज आप लोग मुझे बता दिए इफ यू ऑल वांट टू कंटिन्यू देन आई विल कंटिन्यू। ओके, सो जो जो चाहते हैं कंटिन्यू करना आप बता दीजिए, जो नहीं चाहते वो भी लिख दीजिए, सो दैट आई कैन नो। नो प्रॉब्लम। यस यस यस, ओके। दीपक जी wants me to continue. Baiju ji wants me to stop. Omkar ji wants me to continue iPhone. सो 90% ऑफ दी अभी तक मेरे को जो कमेंट्स आए हैं, 90% बोल रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए। सो आई गो विद द मेजोरिटी। 90% जो बोल रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो आप लोग को भी जब लगे कि हो गया सर, तो आप बता दीजिए। अपना ऐसा नहीं है कि लाइक बस बोलते चले जाए और कोई यूज नहीं आए। जब तक आप लोग को, और मेरे को भी जहां लगेगा कि मैं थक गया और नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं भी बोल दूंगा। ओके ओके, सो अब मैं एक पैटर्न है, वो बहुत मेरा फेवरेट पैटर्न है। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स। ठीक है, तो मैं, मुझे जो ज्यादा पसंद है, मैं एक्चुअली वही वाला पैटर्न कहा है आप लोग को पहले। सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मुझे अच्छा लगता है, और ये मतलब ट्रायंगल पैटर्न्स, और ये मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स। ठीक है, मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम मेरा एक रीजन के लिए फेवरेट है कि इसमें जो है रिस्क रिवॉर्ड आपका काफी फेवरेबल है। रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत फेवरेबल है, मतलब बहुत कम रिस्क के साथ अपने को रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है इसमें। दैट इज वाई दिस पैटर्न इज माई फेवरेट। ठीक है, तो मैं खोलता हूँ उसको। तो इसमें डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप। जो आपको ग्रीन में दिख रहा है वो बुलिश पैटर्न, और जो रेड में दिख रहा है वो आपका बियरिश पैटर्न है। ठीक है, तो मैं पीडीएफ में नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको पैटर्न दिखा देता हूँ, इसका यूज दिखा देता हूँ। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखिए तेजस नेटवर्क, ठीक है, 1 अप्रैल को बना था। कौन से पैटर्न में आया था? डबल बॉटम। 1 अप्रैल 2024। क्या प्राइस पे आया था? 651। और अभी एलटीपी चल रहा है 1027। एलटीपी चल रहा है 1027। ठीक है, तो मैं इसको अब ओपन करता हूं। तो ये पॉइंट फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम,
ये दो बॉटम बने और इसके बाद प्राइस हैज गॉन अप, ठीक है। तो ये बॉटम, डबल बॉटम के पीछे साइकोलॉजी किया है, साइकोलॉजी बिहाइंड द दिस डबल बॉटम। डबल बॉटम ये आपका जनरली आपका जब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, एक बार बॉटम बनता है यहाँ पे, वहां से क्या आता है, बाइंग आती है और प्राइस ऊपर जाता है, राइट। तो जो लोग यहाँ पे बाई करके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, वो फिर यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर वो स्टॉक सेलिंग आता है, वो स्टॉक्स फिर नीचे आता है। तो जब जो जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए थे, जो अपॉर्चुनिटी मिस कर लिए थे बाय करने का, वो वापस उस लोग के पास आता है, तो वो स्टार्ट बाइंग इट, दे स्टार्ट बाइंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डबल बॉटम आपका बना, बॉटम वन, बॉटम टू, ठीक है। तो अब ये फेवरेट क्यों है, अब आपका एंट्री इस कैंडल के हाई के ऊपर होगा, राइट, इस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। ये कैंडल ने आपका बहुत बड़ा ऊपर हो गया प्राइस, ठीक है, जनरली इस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब इस ये फेवरेट क्यों है कि इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो बहुत छोटा होगा। जस्ट ये जो लो है, इस लो के नीचे मैं आधा 1% का फिल्टर देके आई कैन पुट अ स्टॉप लॉस, ठीक है। आधा एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखूंगा, क्योंकि डबल बॉटम जब मेरा बना है तो प्राइस ये दो लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर ही जाना चाहिए, राइट। मगर अगर इसके नीचे चला जा रहा है तो प्राइस और नीचे जा सकता है, आई मे गो रॉन्ग। तो इसलिए मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लूंगा, ठीक है, और मैं ट्रेड को बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने ट्रेड बाय किया तो मेरा टारगेट क्या होगा, राइट, टारगेट क्या होगा। तो फर्स्ट टारगेट मेरा होगा ये लो के बीच से और ये जो हाई का डिस्टेंस है, ठीक है, ये ये मेरा होगा फर्स्ट टारगेट, जो आपका रेजिस्टेंस बना है, जहां से बढ़ के वापस से जो स्टॉक गिरने लगा था, ये मेरा आपका होगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। इसमें आप दो तरह के टारगेट लगा सकते हैं, राइट। फर्स्ट टारगेट ये आपका रेजिस्टेंस लाइन, ओके, दिस लाइन। एंड सेकेंड टारगेट क्या होगा आपका, ये जो डिस्टेंस है, ये हाई और ये जो बॉटम है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, उसको इस ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर ऐड कर देंगे। सपोज ये प्राइस आपका 180 है, ओके, यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 150 है, ये बॉटम 150 है। तो 180 माइनस 150 कितना हुआ, 30 रुपीज, ठीक है। और 150 प्लस 30, 180। तो वैसे मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं अपने, यहाँ का जो लो है, इसका लो है 652, 653 पकड़ लेता हूँ, आई जस्ट कैलकुलेटिंग, 653 लो है। और यहाँ पे इसका हाई है, ये कैन इसका हाई देखूंगा मैं 799, तो 799, और ये लो था मेरा 652, ठीक है, माइनस 652, तो 147, 147 का यहाँ पे डिफरेंस आया। तो पहला टारगेट अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ इसके हाई के ऊपर, तो पहला टारगेट तो मेरा ये हो जाएगा 779, ओके। एंड दूसरा टारगेट मेरा क्या होगा, ये 147 रुपीज का डिफरेंस है, तो ठीक है, तो 779 प्लस 147, तो 147 प्लस 779, तो 926 का मेरा सेकेंड टारगेट होगा, तो जो कि इसमें अचीव हो चुका है, दोनों ही टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉटम था, ठीक है। इसमें और देख लेता हूँ स्टॉक्स। हिंदुस्तान कॉपर, ये आपको 14 मार्च को बना था 231 पे, ठीक है, अभी प्राइस 391। ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल मिल गया मेरे को, मैं जो ढूंढ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एक बॉटम, यहाँ पे आपको मिला एक बॉटम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्राइस बिस हाई के ऊपर बंद हुआ, ठीक है, यहाँ पे यू गेट एन एंट्री। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा है। मैं क्या बोलता था आपको, ब्यूटी इज दैट द स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल। ये कैंडल का लो है 231 और ये लो का लो कितना है 234, ठीक है। तो आसपास इसका 234, ठीक है। तो ये, तो जो दोनों में से लो में जो लो होगा, ज्यादा लो होगा, मैं उसका स्टॉप लॉस लूंगा। तो 234 और 231 में ज्यादा लो क्या है 231 का, तो मैं 231 के नीचे, तो 230 भी रख सकते हैं, 228, 229 एज पर योर रिस्क।
आप इसके नीचे कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एटलीस्ट आधा परसेंट का तो इसके नीचे फिल्टर दे दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो तो ये हुआ। तो फर्स्ट टारगेट अगर मैं यहाँ बाय करूंगा तो ये हाई हो जाएगा मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और सेकंड टारगेट मेरा इस हाई और इस बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस है, तो ये हाई है आपका 289 का, और लो है मेरा 231, ठीक है, ऑलमोस्ट 60 रुपीज। तो इस ब्रेकआउट के ऊपर 60 रुपीज ऐड करूंगा मैं, ठीक है। तो 290 प्लस 60 इज अराउंड 350। तो वो टारगेट भी अचीव हो गया, सेकंड टारगेट भी देखिए यहीं पे अचीव हो गया और टारगेट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि टारगेट से पहले वी कैन सी अ रेजिस्टेंस, वहां पे एक रेजिस्टेंस है, रुकावट है। तो अगर टारगेट में अचीव होने में एक आधा 1% बाकी है, बट या 1-1.5% बाकी है, बट स्टॉक उसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इट्स बेटर कि आप टारगेट से पहले भी निकल सकते हैं, ओके। तो यू हैव टू सी ओवरऑल मार्केट में प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। अपने मार्केट में जिद्दी नहीं हो सकते कि अपने टारगेट ही लेके ही निकलेंगे। अगर मार्केट नहीं देना चाह रहा है तो अपने कैसे लेंगे। तो अपने को बाकी चीज देख के, ठीक है, अगर घूम रहे हैं स्टॉक्स बार बार, ठीक है, तो अपने यहाँ पे एक बार निकल सकते हैं। तो कोई भी चीज बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं ला सकते मार्केट में, यू हैव टू बी वेरी सब्जेक्टिव, और एज पर मार्केट सिनेरियो आपको चेंज रहना हो। मार्केट में आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आपका जो कर ओवरऑल बोलते हैं ना, आपके रूल्स रहना सेम रहना चाहिए, बट रूल्स के हिसाब से आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, बट 90% ऑफ द योर रूल्स विल रिमेन सेम, ठीक है। 10% आपको मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस। तो ये था आपका डबल बॉटम, ठीक है। तो बहुत से ऐसे पैटर्न्स बने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये काफी, इसका बेस्ट पार्ट है कि आपको ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल काफी होता है। ये देखिए कितना अच्छा। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉटम देख के अगर मैं कहीं यहाँ कहीं स्टॉक ले लिया होता, तो मेरा कितना अच्छा रिटर्न आया होता, यू कैन सी। बट द ऑप्शन, कोशिश अभी तो मैं पीछे देख के बोल दे रहा हूँ, लाइव मार्केट में लेना चैलेंजिंग क्या होता है। अभी मैं आपको चार्ट देख के इतने आसानी से बता दे रहा हूँ ये हुआ है, बट द रियल टेस्ट इज हाउ आई एक्चुअली स्टॉक मार्केट इज 80% इज साइकोलॉजी एंड 20% इज स्ट्रेटेजी। ये चार्ट पैटर्न जो है ना, ये 20% है, बाकी 80% आपका साइकोलॉजी है। ये आपको स्ट्रैटेजी बना के दे दिया। अब जब यहाँ पे आएगा मेरे पास माइंड में 10 क्वेश्चन आएगा, मैं लूं कि नहीं लूं, स्टॉक अगर नीचे चला गया तो क्या होगा, गैप डाउन हो गया तो क्या होगा, वीक हो गया है, बहुत से क्वेश्चन आएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है मैं ओवर एनालिसिस कर दूं और ट्रेड नहीं लूं, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा, मेरा यहाँ पे पैटर्न बना, मैं उसके ऊपर बाय कर लूंगा। बाय तो कर लिया, अब उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करूंगा। उसके बाद मेरे हाथ में नहीं है कि हाउ मैं ट्रेड को ऊपर ले जाऊँ, मैं अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। दैट इज द ओनली वे विच यू कैन मैनेज योर ट्रेड एंड अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। वरना क्या होता है, इनएक्शन हो जाता है, अपने सोचते रह जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी मार्केट, ठीक है। एंड रीजनेबल एक्शन, जिसको बोलते हैं ना, रिस्क लेना चाहिए बट कैलकुलेटेड रिस्क। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। आपका रिस्क पता है, आपको पहले से पता है कि भैया मुझे धक्का लगेगा तो मैं कहाँ तक का नीचे जाऊंगा, ठीक है, तो मैं इतना तक बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये डबल बॉटम था, वैसे ही उसका उल्टा होता है डबल टॉप, ठीक है। तो डबल टॉप, ये देखिए यूनियन बैंक 8 अप्रैल को बना था 163 के ऊपर, और ये डबल टॉप बेयरिश पैटर्न होता है। एक बार टॉप बना, नीचे आया, फिर उसी टॉप के पास आया, तो सेलर्स यहाँ एक्टिव हो गया, प्राइस केम डाउन, ठीक है। तो देखिए अपना इसने फर्स्ट टारगेट अचीव ऑलमोस्ट कर लिया यहाँ पे। ये इसका फर्स्ट टारगेट था, जो कि इसका सपोर्ट लेवल था, ओके। तो फर्स्ट टारगेट अचीव करके ये वापस ऊपर बढ़ा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी यहाँ पे सेल किया होगा उनका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा। सेकंड टारगेट वैसे ही निकालेंगे, ये और ये डिस्टेंस को माइनस करके जो आएगा उस इस इसके ऊपर इसके नीचे चलेगा तो उससे और वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वीबीएल में भी बना था डबल टॉप, ये देखिए यहाँ वीबीएल में डबल टॉप बना है, ठीक है। उसके बाद इट हैज कम डाउन एंड अभी एक रेंज में चल रहा है, ठीक है।
तो अभी रिसेंट में कुछ आया है क्या, लेट मी सी। ये पीएनसी इंफ्रा 10 अप्रैल को आया था। पीएनसी इंफ्रा, ये यहाँ पे पीएनसी इंफ्रा आपका डबल टॉप बनाया। तो इसमें भी आपका रिस्क क्या होगा, अगर कोई सेल करता है, अगर एफएनओ में कोई काम कर रहा है, आप कैश में तो सेल कर नहीं सकते, इंट्राडे सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। कैश में आप तो इसमें आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके डीपी में ऑलरेडी ये स्टॉक है, आपने कोई स्टॉक में देखा कि डबल टॉप बना हुआ है, तो आप वो डीपी में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं राइट, डीपी में कर सकते हैं। या वो आप स्टॉक आप लेने का सोच रहे थे, बट आप देखे कि इसमें डबल टॉप बना हुआ है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं वो स्टॉक को लेने का एंड यू लुक टू बाय एट लोअर लेवल, सपोर्ट लेवल के आसपास में बाय करने का सोचेंगे, क्योंकि ये प्राइस में डबल टॉप बन गया, तो आप अवॉइड करेंगे। तो दिस वे यू कैन यूज दिस पैटर्न इन कैश मार्केट। एफएनओ में तो आप सेल कर सकते हैं, बाकी आप ओपन इंटरेस्ट और वो सब देखने के बाद यू कैन सेल, या कॉल पुट स्ट्रेटेजी बना के कर सकते हैं जो एफएनओ लिस्टेड स्टॉक होंगे। ओके, तो ये ओबराई रियल्टी, ये ओबराई रियल्टी, तो यहाँ पे बना, उसके बाद इट हैज गॉन डाउन, और फिर वापस से एक रेंज में जा रहा है, ऊपर जा रहा है अभी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टारगेट देखेंगे तो अभी तक अचीव नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो है वो इस लेवल के आसपास आएगा, ये जो सपोर्ट लेवल है अराउंड 1250-60 के पास में इसका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। सेकेंड टारगेट तो ये और ये के बीच में जो डिफरेंस होगा, इस लो से इस पॉइंट से माइनस करेंगे तब आपका सेकेंड टारगेट आएगा, ठीक है। ओके, सो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन राउंड, अगर कोई क्वेश्चन है। आई मिस द सेशन, वेयर टू सी द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड जिनका सेशन मिस हो गया उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो वरीज, मंडे आई थिंक मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, हैशटैग रिकॉर्डिंग्स डाल के, आपको सब रिकॉर्डिंग जितनी भी है स्टॉकेज सोशल में अगर आप लोग हैं, तो उसमें हैशटैग रिकॉर्डिंग्स डालेंगे तो जितने भी रिकॉर्डिंग से पहले के मिल जाएंगे। आज का रिकॉर्डिंग मोस्ट प्रॉब्ली आपको मंडे तक मिल जाएगा। ओके, दयानंद जी पूछ रहे हैं, सर मार्केट पॉजिटिव है और आरएसआई और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, जितना टारगेट था वो भी मिल गया, तो ट्रेड को होल्ड करें या एग्जिट करें। देखिए टारगेट अचीव हो गया है, अब ट्रेड को होल्ड करें या एग्जिट करें, गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको खोने को कुछ नहीं है, आपका टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। अब आपको लगता है कि इसमें और पोटेंशियल है, ठीक है, तो आप अपने टारगेट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। आप होल्ड करना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं कि टारगेट अचीव हो गया तो और स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, और भी ऊपर जा सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। कैन आई एक्सेस चार्ट इफ आई एम अ प्रीमियम मेंबर, ये सर आप त्रिपाठी जी, एस के त्रिपाठी जी, कस्टमर सपोर्ट से एक बार पूछ लीजिएगा, मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट टीम विल असिस्ट यू विद दिस। तो जिनके पास पैटर्न्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करने से होगा, वो आप एक बार कस्टमर टीम से आप लोग बात कर लीजिएगा, देन यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो मेरे को इसके बारे में पता नहीं, बट ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो मुझे भी एक बार इसकी जानकारी ले लूंगा कि कौन लोग इसका अटेंड कर पाते कि नहीं कर पाते, सो दैट आई कैन आई विल एबल टू आंसर यू ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि मैं क्योंकि बहुत बार ये मैसेज आया है मेरे को, ठीक है। तो आप एक बार कस्टमर सपोर्ट से बात कर लीजिएगा सर, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था क्या, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, तो जब भी आपका टारगेट अचीव हो गया, आप एक नीचे का कोई लेवल्स देख के आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जैसे कि अपना उसमें देखा था डबल बॉटम में। अब सपोज मान लीजिए आपका आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, मैं बता रहा हूँ, टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे, या यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, बट आपको और पोजीशन होल्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये जो मैं देख रहा हूँ ये गैप लेवल है, सपोर्ट लेवल है, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ये कैंडल लगा, ये स्टॉक इसके नीचे जाएगा, उसको बोलते हैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो हो सकता है आपका प्रॉफिट जो आप यहाँ पे प्रॉफिट पा रहे हो, थोड़ा प्रॉफिट और रिड्यूस हो जाए, बट अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको और बेनिफिट भी मिल सकता है उसका। तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा तो कुछ प्रॉफिट कम आ जाएगा, बट अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया, प्राइस और ऊपर गया, तो आपको और बड़ा प्रॉफिट भी आ सकता है, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं उसमें।
ठीक है, तो जैसे अभी मान लीजिए मेरा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है, अब मेरे को ये स्टॉक लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ ट्रेल करके। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखिए ये गैप लेवल दिख रहा है मेरे को, ठीक है, यहाँ क्या है, लो है इसका 271, ठीक है, अभी 291 चल रहा है। मैं 271 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ कि इस गैप के नीचे जाता है। या जो और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, इसका लो क्या है 246, तो उनका रिस्क ज्यादा 246, तो ये अगर इसके नीचे जाएगा तब उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। जो थोड़ा कम और थोड़ा जानते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा बट मैं थोड़ा रिस्क और ले सकता हूँ, तो वो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये सब बहुत आपके सब्जेक्टिव है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं किस हिसाब से, उस हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। ओके, नॉट फॉर प्रीमियम यूज अर्लियर था 2 ईयर बैक। ओके, तो आई थिंक क्लब में, क्लब अगर आप लेते हैं आई थिंक, तो क्लब में सब कुछ अवेलेबल है, दोज हु आर इन द क्लब। ठीक है, तो उनके लिए आई थिंक सब फीचर्स अवेलेबल है, इतना मुझे पता है। बाकी स्टॉकेज कस्टमर सपोर्ट से आप एक बार बात कर लीजिए, जिनका कोई डाउट है तो दे विल एबल टू आंसर। ठीक है, अच्छा, तो ये था मेरा डबल टॉप और ट्रिपल टॉप। और ट्रिपल टॉप भी वैसे ही है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल टॉप में 3 बार बॉटम टेस्टिंग होता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, ये देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 बार, ये ऑटोमेटेड बन के आता है, 3 बार होता है। तो यहाँ पे आपका बाइंग सिग्नल आ गया। ठीक है, बाइंग सिग्नल यहाँ पे आ गया, उसके बाद देखिए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया, इट हैज नॉट ट्रिगर्ड अ स्टॉप लॉस। अगर करता भी, अगर मैं ऐसा 10 ट्रेड लेता, 5 में भी या 6 में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता, तब भी मैं बेनिफिट में रहता, तब भी मैं प्रॉफिट में रहता। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना स्टॉक्स देखा है, ठीक है, कुछ में स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। MCX, बॉटम 1 बॉटम 2 बॉटम 3, 3 बार बॉटम बना, प्राइस यहाँ आपका एक्टिव हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट था, अचीव किया। ठीक है, आई थिंक सेकंड टारगेट भी यहाँ पे अचीव कर लिया, और उसके बाद प्राइस नीचे आया। अब बट अभी तक कहीं पे भी किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर, ये तो बहुत पुराना हो गया एक्चुअली, तो इतना दूर का देख के फायदा नहीं है। बट आपका अगर यहाँ पे लिए होते तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों अचीव हो जाता। ठीक है, तो रिसेंट में कोई बना है क्या, देखता हूँ। रिसेंट में अभी कोई डेटा नहीं आया है। ठीक है, इसी का उल्टा है ट्रिपल टॉप, रिसेंट में अभी कुछ नहीं आया है। पास्ट में जो अपने पास आ चुका है, जस्ट डायल 18 जैन को आया था 957 पे, अभी प्राइस चल रहा है 1066। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सेल आया, उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, यहाँ तक नीचे आया, एंड अगेन इट हैज मूव्ड अप। तो अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया होता तो उनको कुछ प्रॉफिट मिला होता। ठीक है, ऑल्दो उसने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं किया, तो यहाँ पे अगर कोई होल्ड भी किया होता तो यहाँ से यहाँ तक उनको अच्छा फॉल मिला। ओके, यहाँ से यू कैन सी दे हैव गॉट गुड फॉल। और अगर जो और भी होल्ड किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर चला गया, जो कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है इसके ऊपर, तो आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, यहाँ तक में प्राइस अभी तक इस यहाँ तक क्लोज नहीं हुआ था इस हाई के ऊपर, फर्स्ट टाइम कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल इंडिकेशन दे के इट हैज गॉन डाउन, एंड नाउ इट इज अबव दिस लेवल। तो अगर आपको यहाँ पे सेल किए होंगे तो इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस होंगे, तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाएगा कंपेयर टू द टारगेट्स विच यू आर गेटिंग। ओके, तो ये जस्ट डायल का था। देन डालमिया भारत, ये देखिए, तो फन टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3, एंड देन इट हैज गॉन डाउन शार्पली। तो अपना आई थिंक दोनों टारगेट इसने अचीव कर लिया है। फर्स्ट टारगेट तो यहाँ अचीव हो गया है, काफी बड़ा फर्स्ट टारगेट यहाँ अचीव हो गया है। तो सेकंड टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, वो कैलकुलेट करके देखना होगा वेदर सेकंड हैज बीन अचीव्ड और नॉट। ठीक है, तो यू कैन सी, तो इट इज वर्किंग।
द पॉइंट इज दैट इट इज वर्किंग। और कोई कोई केस होगा जहां पे आपका वर्क नहीं करेगा, तो वहां के लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको बचाएगा। ठीक है, और आपको मार्केट में रखेगा, और ताकि बाकी टाइम भी आप ट्रेड कर सके। ठीक है, तो ये सब बॉटम्स और ट्रिपल टॉप्स, ट्रिपल बॉटम्स, डबल टॉप, डबल बॉटम का रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल होता है। इसको अगर आप ध्यान में रख के करेंगे, तो अगर इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, 10 में अगर आप 4 बार भी राइट पढ़ेंगे, 6 बार भी रॉन्ग पढ़े, जो कि ऐसा होता नहीं है जनरली, बट अगर ऐसा हुआ भी, देन ऑल्सो यू गो विथ अ प्रॉफिट इन हैंड्स। ठीक है, होप यू ऑल अग्री विथ मी। इफ यू आर नॉट अग्रीइंग विथ मी, प्लीज, मैं ऐसा नहीं कि मैं बस बोल दूं और वो सही हो, आप लोग भी इस बात से अग्री कर रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो। हाउ टू प्लेस, शो मी एग्जांपल विद स्टॉप लॉस आल्सो। अच्छा, जिसमें स्टॉप लॉस अभी मैंने डिस्कस किया था, वेयर टू टाइप हैशटैग रिकॉर्डिंग, यू हैव टू टाइप इन सोशल में, जो सर्च करते हैं, सोशल है ना अपना, स्टॉक इज सोशल। मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोग को। यहाँ पे अपने कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में आप जाके यहाँ पे आप कर सकते हैं। मेरा आई थिंक हैशटैग का की थोड़ा सही नहीं चल रहा है, मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप कर सकते हैं, मेरा हैशटैग का की ठीक नहीं है लैपटॉप में थोड़ा, तो यहाँ पे हैशटैग और उसके बाद रिकॉर्डिंग। अमर, डू यू वांट मी टू शो अप माय स्क्रीन और मैं बता दूं लोगों को कैसे हाँ, रिकॉर्ड आप एक करना? बार दिखा दे, मेरा हैशटैग का की प्रेस नहीं हो रहा एक्चुअली। नो प्रॉब्लम, मैं देख लेती, एक मिनट, जस्ट लाइन। स्वाति जी, मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा अगर वो बता दें कि चार्ट पैटर्न्स कौन लोग देख सकते हैं। श्योर। तो आई वुड जस्ट लाइक टू कंफर्म एवरीवन कि अगर आप स्टॉकेज के प्रीमियम यूजर हैं या फिर प्रो यूजर हैं, तो प्रीमियम यूजर को जनरली चार्ट पैटर्न्स नहीं मिलता है। फॉर प्रो एंड द क्लब यूजर चार्ट पैटर्न्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ओके। अगर आपको अपग्रेड करना है अपना प्लान, तो आप हमें यहाँ पर चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वी कैन जस्ट अरेंज अ कॉल ऑफ योर्स। ऐसा नहीं है कि आज आपने सीखा है तो आपको अपना प्लान को कन्वर्ट करके अपग्रेड करके प्रो लेना है। इट इज एब्सोल्युटली आपका चॉइस है दैट हाउ वुड यू लाइक टू डू इट। ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू कि कैसे आपको रिकॉर्डिंग रेफर करनी है। तो आप यहाँ पे स्टॉकिट सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ पर आके आपको रिकॉर्डिंग्स लिखना है। ओके। आप रिकॉर्ड भी वर्ड लिख सकते हैं, कपल ऑफ लेटर्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि RECO, रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग्स, जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इस आइकन पे सर्च नहीं करेंगे। आपको क्लिक करना है कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपको दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है एड टू सर्च, यानी कि ये एडवांस सर्च है। आप इसे क्लिक करेंगे। ओके। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, आपको यहां पर लिखना है कस्टमर। ओके, यानी कि हमारा डिपार्टमेंट। वन सेकेंड। यहां पर आप लिखेंगे कस्टमर। जैसे ही आप कस्टमर लिखेंगे तो आपको ये हैंडल आ जाएगी कस्टमर सपोर्ट की, कस्टमर डिलाइट की। वापस से आपको एड टू सर्च करना है। ओके। एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सर्च आइकन। ठीक है। सो इस तरीके से आप सारी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये थर्सडे को हमारा सेशन हुआ था ऑन स्ट्रैटेजीज, यू कैन इवन बुक मार्क दिस टॉपिक। आप इस 3 डॉट को क्लिक कीजिए और एड टू बुक मार्क कर दीजिए, सो दैट आपको बार बार इस तरीके से रिकॉर्डिंग को सर्च करने की जरूरत ना पड़े। सो वेन एवर यू फाइंड द रिकॉर्डिंग, आप वहां पर 3 डॉट पे क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन एड बुक मार्क। अब देखिए, मैं अपने बुक मार्क्स में बहुत कुछ चीजें सेव करके रखी हूँ। दिस इज हाउ यू कैन सेव द रिकॉर्डिंग विच यू वांटेड टू रेफर। जैसे मैंने चार्ट पैटर्न्स का जो हमारा सेशन हुआ था, मैंने उसको सेव करके रखा है अपने अकाउंट पे।
ताकि मुझे कभी भी रेफर करना हो तो आई कैन जस्ट गो थ्रू माई बुक मार्क एंड आई कैन सी द रिकॉर्डिंग. सो आई होप दिस इज क्लियर. अमार, एनीथिंग एल्स फ्रॉम आपकी तरफ से? थैंक यू सो मच। ये मेरे पास बार बार क्वेश्चन आता है, मैं मुझे पता नहीं रहता सही से, तो आज Aman, मैंने भी सीख लिया। trust me, like, every day, every day, this is a very common question जो आता है. तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लेने वाली हूँ. आई होपफुली वो सक्सेस हो जाए. ऑन द लेफ्ट साइड सर एंड मैम एंड आप लोग जितने जन भी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस लर्न टैब में ही सारे जो बेस्ट 7 सेशंस हो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूं. इवन अगर आप स्टॉकिच का प्लेटफॉर्म भी अगर आप यूज कर रहे हैं, बी इट एंड्रॉयड बाई इन iOS यानी कि ऐप में आप यूज कर रहे हो या वेब में, मेरी कोशिश रहेगी कि इस लर्न सेक्शन में भी मैं यहाँ पर बेस्ट 6 डेज का सेशन जो आपका स्टॉकिच स्मार्ट का सेशन है वो मैं यहाँ पर ऐड करवा दूं. लेकिन अगर आपको लाइव अटेंड करना है देन यू ऑल हैव टू कम हियर. सो दिस इज स्मॉल इनिशिएटिव आई एम ट्राइंग टू टेक एंड आई एम श्योर आई विल बी I'll get it done in a week's time. थैंक यू सो मच। So with this, Amar, we can end the session. या Yeah, फिर yeah, we'll you end want the to session spend right some now. time? Thank Sure. you everybody so much for your all your patience. ठीक है, and hope you have learned. ठीक है, and use all these learnings in while trading. ठीक है, और every Saturday we'll be doing this. ठीक है, every Saturday अपना चलता है। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो वापस से आप Saturday ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, so thank you everybody. Have a nice weekend and have a profitable week ahead. Thank you all. Thank you so Right. much. Thank you, Amar. Yeah.